Good morning, class 7th students. Welcome back to all of you in your history classes. And today we are going to do chapter number 4 from the unit of history, and that is emergence of regional kingdoms. Okay? So first of all, everyone open your book and come to page number 47. We are going to do chapter number 4, that is emergence of regional kingdoms, and that from the unit of history. Okay, so let's move on. So what all we have to study in this chapter, we will see. We'll first see that. So what should be in focus? Small regional kingdoms. About small regional kingdoms we are going to study in this. The Bahmani kingdom, the Vijayanagar kingdom, and the case study about the reign of Krishnadev Rai. Okay, so we are going to study about all this in this chapter. So let's move on quickly and start our new chapter. So first of all, there should be some kind of introduction. So first of all, everyone should open the book and come to page number 47. Okay, so in the previous chapter you read about various dynasties of the Delhi Sultanate. The extent of the Sultanate was the greatest during the reign of Alauddin Khilji. ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था, जो जब बढ़ा, सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट था, वो किसके दौरान था? अलाउद्दीन खिलजी के दौरान पे. The dynasty that followed the Khiljis was that of the तुगलक्स. ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आई? कौन सी डायनेस्टी आई? तुगलक डायनेस्टी आई. The Tughlaq ruler Firoz Shah's lenient policies helped the nobles to enjoy considerable power and freedom. जो तुगलक के डायनेस्टी के जो रूलर थे, दैट इज फिरोज शाह, उनकी पॉलिसीज क्या थी? लीनियंट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों को थोड़ा सा अपने पावर को अपने लोगों को ये लगा कि हाँ, हम अपने पावर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Taking advantage of the weakness and incompetence of Firoz Shah's successors, many provincial governors declared their independence. तो फिरोज शाह क्या थे? वीक थे. दैट मीन्स वो इनकम्पिटेंट थे. उनकी डायनेस्टी जो थी वो अच्छे से संभाल नहीं पाए वो. तो क्या हुआ? इसकी वजह से मैनी प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे वो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए, उनको फ्रीडम मिल गई. Thus the process of disintegration of the sultanate started. Okay, the Tughlaqs were succeeded by Sayyids who were not prominent and ruled only for a short period. जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन आई? सईद डायनेस्टी. तुगलक के बाद कौन आई? सईद डायनेस्टी आई एंड दे वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, एंड देयरफॉर दे रूल्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. However, the Lodhis who followed the Sayyids were successful in restoring some of the lost glory of the Sultanate. अब सईद डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? लोधी डायनेस्टी. ये थोड़ी सी पावरफुल थी और इन्होंने क्या किया? अपने ग्लोरी को रखने में, बरकरार रखने में ये लोग अच्छे थे. मतलब इन्होंने क्या किया? रूल किया अच्छे से. बट द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन रीस्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इब्राहिम लोधी. लेकिन फिर भी क्या हुआ? जो डिसइंटीग्रेशन था, दैट मीन्स जो ब्रेकिंग था ऑफ किंगडम्स इनटू द रीजनल किंगडम्स, वो क्या हुआ? इब्राहिम लोधी, जो कि लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का. लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी. ठीक है, इब्राहिम लोधी. इनके दौरान में क्या हुआ? जो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस था वो क्या हुआ? शुरू हो गया. The political unity that India enjoyed till the fall of the Tughlaqs could not be reasserted by the successive dynasties. Consequently, the disintegration of the country led to the emergence of various regional dynasties in India. क्या हुआ? इंडिया का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया. किंगडम्स का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ. जो सबसे भारी किंगडम था दिल्ली सल्तनत, उसका क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, ब्रेकिंग शुरू हो गया. छोटे छोटे वो रीजनल डायनेस्टीज में क्या हुआ? कन्वर्ट होने लगा. One of the prominent dynasties was that of the Bahmanis who ruled इन द डेक्कन रीजन. अब देखो, जो बहमानी किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी. दैट मीन्स बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी. और वो कहाँ पे रूल की? डेक्कन रीजन में. देयर किंगडम वाज कॉल्ड द बहमानी किंगडम, एज यू ऑल नो. अनदर माइटी किंगडम वाज द विजयनगर किंगडम.
जो दूसरी किंगडम थी जो कि बहुत पावरफुल थी वो कौन थी? विजयनगर किंगडम थी। और वो कहाँ पे रूल की? साउथ इंडिया में, साउथ में, साउदर्न इंडिया में उसने रूल किया। It was ruled by the succession of dynasties and emerged as the most powerful South Indian kingdom of the period. ठीक है, तो साउथ इंडिया का जो किंगडम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था उसका नाम क्या था? विजयनगर डायनेस्टी। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल मेक अ रीजन वाइज स्टडी ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट एंड लेस प्रोमिनेंट किंगडम्स विच इमर्ज ड्यूरिंग द 14th and 15th centuries। तो 14th और 15th सेंचुरी में जो भी किंगडम्स इमर्ज हुई या फिर वो वीक थी या फिर स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, उन सबके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्मॉल रीजनल किंगडम्स के बारे में। एंड द फर्स्ट वन इज कश्मीर। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी अबाउट कश्मीर। कश्मीर की क्या कहानी थी इस टाइम पे 14th और 15th सेंचुरी के बीच में? ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड द कश्मीर वैली वाज रूल्ड बाय अ हिंदू डायनेस्टी। क्या हुआ? मेडिवल पीरियड में हिंदू डायनेस्टी के द्वारा कश्मीर को रूल किया जा रहा था। इन द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी शाह मिर्जा मिनिस्टर कैप्चर्ड द थ्रोन एंड दस द हिंदू डायनेस्टी केम टू द एंड। बट क्या हुआ? ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी शाह मिर्जा एक शख्स थे, उन्होंने क्या किया? और राजगद्दी पर बैठ गए और उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और इस वजह से क्या हुआ? हिंदू डायनेस्टी का अंत हो गया। The dynasty established by Shah Mirza has had a long line of rulers। अब क्या हुआ? शाह मिर्जा की पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ का राजा बनने लगा। सिकंदर शाह जो कि 6वां रूलर था इस डायनेस्टी का, वो एक बहुत ही बकवास का एक टाइप का वो राजा था, मतलब एक बहुत ही कठोर राजा था। He imposed jizya on the Hindus and harassed them so much that many of them left the valley। वो क्या था? वो धर्म के नाम पर वो क्या करता था? लोगों के साथ विद्रोह करता था। वो चूंकि मुस्लिम था तो वो हिंदूज के साथ क्या करता था? हिंदूज पे अत्याचार करता था। उसने क्या किया? जजिया इम्पोज कर दिया हिंदूज पे। दैट मीन्स ये एक प्रकार का क्या होता था? टैक्स, ठीक है, जो कि हिंदूज क्या करते थे? उसको, उस टैक्स को भर नहीं पाते थे। और फिर क्या हुआ? वहाँ से बहुत सारे हिंदूज ने कश्मीर को छोड़ दिया, उन्होंने वैली ही छोड़ दी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 century Zainul Abidin ascended the throne, ठीक है। He has been regarded as the greatest ruler of Kashmir। अब Zainul Abidin को हम लोग greatest ruler of Kashmir के नाम से जानते हैं। He was liberal minded and enlightened king। वो एक अच्छा राजा था और वो liberal minded था, मतलब वो लोगों को फ्री कर देता था, फ्रीडम देता था। He showed tolerance towards other religions। He abolished jizya and brought back the exiled Hindus। उसने क्या किया? जो जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था? सिकंदर शाह ने जजिया लगाया था, तो उसको इसने क्या किया? अबॉलिश किया, उसको हटा दिया और उसने हिंदूज को वापस वो बुला लाया कश्मीर में। He even granted them financial aid for the construction of new temples। यहाँ तक कि उसने क्या किया? पैसे भी देता था वो, ताकि आप लोग क्या करो? हिंदूज के लिए मतलब न्यू टेम्पल्स बनाओ। He put a ban on cow slaughter, okay, and himself refrained from eating flesh। और वो काऊ का फ्लैश भी नहीं खाता था और वो काऊ स्लॉटर पर भी उसने क्या कर दिया? बैन लगा दिया। So like this he was able to grow the composite culture that was from Muslims and Hindus. Okay. Zainul Abidin encouraged agriculture by improving the irrigation system. He built several bridges across various rivers and remained engaged in implementing various other schemes for the welfare of his subjects। क्या हुआ? Zainul Abidin एक बहुत ही अच्छा राजा था। उसने क्या किया? वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो भी लोगों के लिए भलाई का काम था उसने सब किया, ठीक है। Zainul Abidin was a great patron of new art and craft। The long forgotten arts of stone masonry was revived due to his efforts। He patronized education and learning। वो एजुकेशन और लर्निंग को भी बढ़ावा देता था। उसको खुद भी बहुत सारी जानकारी थी अदर लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे पर्शियन, हिंदी और तिब्बतन के बारे में। He had several Sanskrit works such as Ramayana and Ratnagiri translated into Persian। उसने क्या किया? रामायण और रत्नागिरी को पर्शियन लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेट किया। और भी उसने क्या किया? बहुत सारे जो पर्शियन लैंग्वेजेस की बुक थे और अरेबिक लैंग्वेजेस की बुक थे उसने उसको कश्मीरी में कन्वर्ट ट्रांसलेट किया। Zainul Abidin is often referred to as the Akbar of Kashmir। अभी इंपॉर्टेंट है भाई, अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं हम लोग? ज़ैनुल आबिदीन को। ये पता होना चाहिए कि अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? ज़ैनुल आबिदीन को। चलिए, तो ये हो गया आपका कश्मीर के बारे में। अब आएंगे मेवाड़ पे।
After the death of Alauddin Khilji, the mightiest sultan of the Delhi Sultanate, Mewar once again became powerful under Rana Hamid. ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई तो वहाँ के जो पावरफुल मेवाड़ के जो पावरफुल राजा थे राणा हमीर, उनके अंडर में मेवाड़ फिर से क्या हुआ, वहाँ पे रीजनल किंगडम बन गया. He did much to transform Mewar into a powerful state. He was succeeded by Rana Kumbha, who continued with the work of strengthening his state. अब इनके बाद कौन आया, राणा कुंभा आया, जो कि मेवाड़ को एस्टैब्लिश करने के लिए वो रेडी थे. He fought several wars with the rulers of Malwa and Gujarat. In 1437 he subdued Mahmud Khilji, the ruler of Malwa, and imprisoned him. ठीक है, 1437 में उन्होंने क्या किया, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को, जो कि रूलर ऑफ मालवा था, उसको क्या किया, जेल में डलवा दिया हरा करके. To commemorate this victory, he built the victory tower in his fort at चित्तौड़. अब देखो, victory tower at चित्तौड़, चित्तौड़ में उन्होंने क्या बनवाया, इस विक्ट्री को, जो उन्होंने काम किया था महमूद खिलजी को, उन्होंने हरा करके उसको जेल में बंद करवा दिया था, इसकी खुशी में उन्होंने विक्ट्री टावर बनवाया चित्तौड़ में. राणा कुंभा वॉज नॉट ओनली अ वॉरियर बट ऑल्सो अ फिलोसोफर, स्कॉलर एंड पोएट. ही वॉज अ बिल्डर टू, तभी तो उन्होंने इतनी भारी भारी बिल्डिंग बनवाई है. देखो विक्ट्री टावर कितना लंबा है. He built a number of tanks, wells and temples throughout his kingdom. The most powerful ruler of Mewar was Rana Sangram Singh or Rana Sanga, who came to the throne in 1509 AD. अब ये most powerful थे राणा सांगा, जो कि 1509 AD में आए. He raised a large army and brought many kings of Rajputana under him. क्या हुआ, उन्होंने बहुत भारी आर्मी को establish किया. He won battles against the rulers of Malwa and Gujarat and Lodhis of Delhi. By 1526 he had become the most powerful king of northern India. Okay, when Babur invaded India the same year, 1526 में ही बाबर आया भारत में. He defeated the last Lodhi ruler easily. However, Babur's most important win was against the mighty ruler Rana Sanga. अब बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोधी को हरा करके वो तो इन्वेड कर लिया भारत को, लेकिन जो उसको बाबर को जो सबसे जो लड़ाई, जिस महत्वपूर्ण लड़ाई लड़नी थी, वो किससे लड़नी थी, राणा सांगा से. ठीक है. However, Babur's most important win was against the mighty ruler Rana Sanga and his Afghan confederates in the Battle of Khanua in 1527, while he was making efforts to establish Mughal rule in India. बाबर कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करना चाहता था, मुगल डायनेस्टी. Babur was greatly impressed by Rana Sanga and has praised Rana's valor in his autobiography. बाबर जो था वो राणा सांगा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था और उसने क्या किया है, उनके वर्क्स को अपनी ऑटोबायोग्राफी में प्रेज किया है, उसको शाबाशी दी है. शॉर्टली आफ्टर हिज डिफीट राणा सांगा डाइड व्हेन समवन पॉइजन्ड हिम. अब राणा सांगा को क्या हुआ, किसी ने जहर देकर के उनको मार दिया. हिज डेथ लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मेवाड़्स इंपॉर्टेंस. अब वो मर गए तो मेवाड़ की इंपॉर्टेंस भी कम होती चली गई. अब पढ़ेंगे मारवाड़ के बारे में. तो हम लोगों ने कश्मीर के बारे में क्या पढ़ा, मेवाड़, और मेवाड़ के बारे में क्या पढ़ेंगे, मारवाड़. मारवाड़ वॉज मेनली रूल्ड बाय दी राठौर्स. ठीक है. इट वॉज वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मेवाड़ बट लिबरेटेड इटसेल्फ इन 1465 AD. ठीक है, मेवाड़ का ही पार्ट था मारवाड़, लेकिन 1465 में वो वहाँ से अलग हो गया. टू इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द राठौर्स वर महाराजा जोधा एंड महाराजा मालदेव. ठीक है, महाराजा जोधा इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द सिटी ऑफ जोधपुर. जोधपुर सिटी जानते हो ना सब लोग, ठीक है. कहाँ है जोधपुर, राजस्थान में है, जहाँ पे मारवाड़ है. तो महाराजा जोधा को हम लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने जोधपुर सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया. ही ऑल्सो बिल्ड द मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर सिटी. आगे अब मालवा के बारे में पढ़ेंगे. मारवाड़ के बाद में मालवा में कैसे एस्टैब्लिश हुआ, क्या एस्टैब्लिश हुआ, रीजनल किंगडम. द किंगडम ऑफ मालवा वॉज फाउंडेड बाय दिलावर खान. ठीक है, सारे किंगडम्स कौन एस्टैब्लिश किया है और कौन फाउंड किया है, आपको याद होना चाहिए. तो मालवा के किंगडम कौन से किन्होंने इसे फाउंड किया, दिलावर खान ने. कैपिटल ऑफ मालवा वॉज धार. ठीक है. द कैपिटल ऑफ द किंगडम वॉज शिफ्टेड टू मांडू बाय हुसन शाह. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द किंगडम. मालवा किंगडम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, हुसन शाह. He and many of his successors fought several battles with the rulers of Delhi, Gujarat and Jaunpur. The kingdom was later annexed by Sher Shah Suri in the early half of the 16th century. ठीक है, मालवा किंगडम पे कौन कब्जा कर लिया, शेर शाह सूरी. उसके बाद अब गुजरात में क्या हुआ,
गुजरात में क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। इन द 15th century a new kingdom named गुजरात was founded by मुजफ्फर खान। ठीक है, एक नया किंगडम 15th सेंचुरी में फाउंड किया गया और वो कौन फाउंड किया? मुजफ्फर खान, और जिसका नाम क्या था? गुजरात। Ahmad Shah, Mahmud Shah and Bahadur Shah were important rulers of the kingdom. During their period, the rulers of Gujarat built several magnificent buildings like the Jama Masjid and Teen Darwaja. देखो जामा मस्जिद जो बना ना जूनागढ़ गुजरात में, नीचे पिक्चर दिया हुआ है, तो उन लोगों के कार्यकाल के दौरान इनको बनाया गया। और 3 दरवाजा भी। They founded new cities. The city of Ahmedabad, which was founded by Ahmad Shah, is one of them. ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में अभी भी है, वो कौन उसको फाउंड किया? अहमद शाह ने। रूलर्स ऑफ गुजरात वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आपको पता ही है गुजरात में आर्ट और क्राफ्ट्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है, these industries made this region famous, especially during the Mughal period. क्योंकि क्या हुआ 1526 तक तो बाबर आ ही गया था। इन 16th century गुजरात वॉज एनेक्स्ड बाय अकबर। अब एनेक्स्ड कौन कर लिया गुजरात के ऊपर? कौन कब्जा कर लिया 16th century में? अकबर ने। गुजरात के बाद कौन है? जौनपुर। जौनपुर के बारे में समझेंगे। जौनपुर वॉज अ प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ऑब्वियस बात है, सारी तो प्रोविंस दिल्ली सल्तनत की थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक रूलर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, मालिक सरवार वॉज द गवर्नर ऑफ जौनपुर। Timur invaded India in the year 1398 AD. After massive plunder and loot, he left the Tughlaq Empire in a devastated state. His invasion accelerated the disintegration of the empire. Taking advantage of the situation, Malik Sarwar declared his independence and founded the Sarki dynasty. The most important ruler of the dynasty was Ibrahim Shah Sarki. He transformed Jaunpur into a powerful state. तो इब्राहिम शाह सर्की ने क्या किया? जौनपुर को एक पावरफुल स्टेट में इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ड्यूरिंग देयर रेन ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। अब 1 साल तक इन्होंने रूल किया। शर्की रूलर्स जो थे, मेड देयर स्टेट अ ग्रेट कल्चरल सेंटर। अब वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ऐसे सेंटर्स डेवलप किए जो कि बहुत ही कल्चरल रिच हेरिटेज था उसका। दे वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। द जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद आर 2 नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ शर्की आर्किटेक्चर। देखो जामा मस्जिद है ना जौनपुर में। लास्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी वॉज हुसैन शर्की। ठीक है, लास्ट किंग कौन थे शर्की डायनेस्टी के? हुसैन शर्की। दो ही वॉज नॉट एन इफेक्टिव रूलर, ही होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक ड्यू टू हिज एग्जेम्पलरी पैट्रोनज टू म्यूजिक। उनका चूंकि म्यूजिक की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, इस वजह से इनको हम लोग हिस्ट्री में याद करते हैं। शर्की डायनेस्टी केम टू एन एंड व्हेन जौनपुर वॉज एनेक्स्ड बाय सुल्तान बहलूल लोदी इन द ईयर 1484। तो यहाँ से जौनपुर का एंड हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? खानदेश के बारे में। खानदेश emerged as a small kingdom to the south of मालवा। मालवा के साउथ में ये एक स्मॉल किंगडम था। किसने फाउंड किया? मालिक राजा ने, जिनको हम राजा अहमद के नाम से भी जानते हैं। He was succeeded by Nasir Khan, who laid the foundation of a new town known as Burhanpur. His successors were weak, ठीक है। Consequently, the kingdom was lost to the rulers of Gujarat, और इसलिए गुजरात ने इस पर कब्जा जमा लिया। चलो बंगाल के बारे में आ जाओ। बंगाल में क्या हुआ? Being a major trading outpost, the province of Bengal had great importance. अब क्या हुआ भाई? बंगाल में क्या होता था? बहुत ही बड़ा ये क्या है? ट्रेड प्लेस था। दैट मीन्स वहाँ पे व्यापार होता था, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। द दिल्ली सुल्तनत कंसिडर्ड बंगाल अ ट्रबलसम प्रोविंस बिकॉज दे हैड टू फेस फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स बाय द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस। दिल्ली सल्तनत थे, उनको क्या हुआ? उनको बंगाल को एक ट्रबलसम प्रोविंस लगता था, वो एक परेशानी भरा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो क्या होते थे? तुरंत प्रोटेस्ट करते थे और तुरंत क्या होते थे? रिवोल्ट कर देते थे। ड्यूरिंग द 14th and 15th century, Bengal saw a succession of dynasties. ठीक है, the Ilyas Shah dynasty and the Hussain Shah dynasty were prominent among them. Ilyas Shah dynasty ruled from 1342 to 1415 and again for a period of 50 years. The Ilyas Shahis successfully secured the independence of their kingdom against the military expeditions of Sultan Firuz Tughlaq. They revived Bengal's links with the outside world. They defeated the rulers of Nepal, Orissa and Tirur.
Ghiyasuddin Azam Shah, who ruled from 1390 to 1411 AD, exchanged envoys with his contemporary Chinese emperor. The dynasty came to an end in 1487 AD. Okay. The Hussain Shahi dynasty came to power in 1494 AD. ठीक है, अब 1494 AD में हुसैन शाही डायनेस्टी जो था वो पावर में आया. Though the Hussain Shahi dynasty ruled for a shorter period, their tenure is considered to be remarkable for their cultural and political achievements. कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स उस टाइम पे ज़्यादा थी, इसलिए इनको हम लोग हिस्ट्री में याद रखते हैं. This dynasty saw two powerful and able rulers that were Alauddin Hussain Shah, who ruled from 1494 to 1519, and his son Nasiruddin Nasrat Shah, who held the throne from 1519 to 1533. Both these rulers were liberal minded, ठीक है, बहुत open minded थे, and good administrators. Besides, they regained the lost territories and constructed magnificent buildings at Pandua और Mugwar. इन्होंने इनकी जो किंगडम खो गई थी उसको भी इन्होंने वापस से लिया और मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स को बनवाया जो कि पंडुआ और ग्वार में है. 12 सोना मॉस्क्यू was built during the reign of Sultan Hussain Shah and Sultan Nasrat Shah. Sultan Nasrat built another mosque called the Qadam Rasul Mosque at Gaur. They were also great patrons of cultural activities. They patronized not only Persian, which was the core language, but also Bengali. They had several Sanskrit works translated into Bengalis to promote the rising Bengali literature. उन्होंने क्या किया? बंगाली लिटरेचर को इन्होंने अपग्रेड किया, इन्हांस किया, उसको महत्वता दी. नसरत शाह was assassinated. उनका मृत्यु हो गया 1533 में. His death was followed by political instability and confusion. ठीक है, वो मर गए. So the state remained in the grip of confusion until its annexation by Sher Shah Suri in 1539 AD. 1539 AD में शेर शाह सूरी ने उस पर अपना बंगाल रीजनल किंगडम पे कब्जा जमा लिया. अफगान्स रूल्ड द टेरिटरी टिल इट वाज एनेक्स्ड बाय अकबर. अब जब तक अकबर ने रूल किया तब तक कौन रूल किया? अफगान. और उसके बाद अकबर ने उसके ऊपर भी कब्जा जमा लिया. अब पढ़ेंगे हम लोग बहमानी किंगडम के बारे में. चलो, तो बहमानी किंगडम पे आ जाओ. ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बच्चों, ठीक है, हिस्ट्री है ना, तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है. चलो, बहमानी किंगडम. द बहमानी किंगडम वॉज अ लार्ज किंगडम इन द डेक्कन रीजन. हमने आप लोगों को बताया कि बहमानी किंगडम कौन से रीजन में था. दैट वॉज इन डेक्कन रीजन. इट वॉज फाउंडेड इन 1347 AD बाय अलाउद्दीन हसन. ठीक है, कौन फाउंड किया? अलाउद्दीन हसन. ही वॉज अ टर्किश आमिर during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Alauddin Hassan had risen in the service of a person called Gangu. Therefore, he came to be known as Hassan Gangu. ठीक है, he sat on the throne with the title of Alauddin Bahman Shah. तो जब वो throne पे बैठा तो उसका नाम क्या था? Alauddin Bahman Shah. His dynasty was known as the Bahmani dynasty. और चूंकि उसका नाम अलाउद्दीन बहमान शाह था जब वो बैठा राजगद्दी पर, तो इसीलिए इस डायनेस्टी को हम लोग क्या समझेंगे? Bahmani dynasty. The kingdom ruled by the Bahmanis is traced from the Arabian Sea in the west to the Bay of Bengal in the east. The Bahmani kings were constantly at war with their neighboring kingdom Vijayanagar. Bahmani kings जो थे वो हमेशा विजयनगर किंगडम से क्या करते थे? वॉर करते थे, लड़ाई करते थे. The most powerful rulers of the Bahmani kingdom were फिरोज शाह बहमानी और महमूद गवन. तो अब पहले पढ़ेंगे फिरोज शाह बहमानी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे महमूद गवन के बारे में. ठीक है, तो जो दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे बहमानी किंगडम के वो कौन कौन थे? फिरोज शाह बहमानी एंड महमूद गवन. चलो, फिरोज शाह बहमानी ऑल्सो नोन एज तजुद्दीन फिरोज शाह केम टू पावर इन 1397 AD. ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर. ही subjugated the Gond king नरसिंह राय एंड conquered some of his territories. ठीक है, गोंड किंग जो थे नरसिंह राय, उसको इन्होंने हराया और फिर उसने क्या किया? उनकी जो टेरिटरीज थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया. नरसिंह राय इन हिज वॉर्स अगेंस्ट द विजयनगर एम्पायर ही वन द रायचूर दोआब फर्टाइल लैंड एरिया. ठीक है, रायचूर दोआब जो था, जो कि फर्टाइल लैंड एरिया था जहाँ पे क्या होता था? क्रॉप्स ग्रो करते थे, उसको भी इसने जीत लिया.
However, he could not hold on to it for long and again lost to the rulers of विजयनगर. लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक ये उस पर अपना राजकाज नहीं चला पाया और उसके बाद फिर से इसने विजयनगर रूलर्स को उसको लॉस्ट कर दिया. दैट मीन्स वो हार गया. फिरोज शाह वॉज अ लिबरल माइंडेड रूलर. ठीक है, ओपन माइंडेड था. ही शोड रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स. अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज वर एम्प्लॉयड इन हिज कोर्ट. ठीक है, जो उसका कोर्ट था वहाँ पे बहुत सारे हिंदूज को उसने एम्प्लॉय कर रखा था, नौकरी दे रखी थी. He had a scientific bent of mind. He was a learned man and a good poet as well. He had a good knowledge of several languages like Arabian, Persian, Turkish, Marathi, Telugu and Kannada. उसको इन सब चीज़ों की बहुत नॉलेज थी, सारी लैंग्वेजेस की. He provided asylum to learned people and patronized art, culture and literature. Okay, अहमद शाह was an able ruler. अहमद शाह क्या था? एक बहुत ही एबल रूलर था, मतलब वो बहुत सारे उसके अचीवमेंट्स हैं. ही वॉज सक्सेसफुल इन द वॉर्स अगेंस्ट. वो विजयनगर से लड़ाई करके सक्सेसफुल हुआ. मालवा, वारंगल से भी लड़ाई करके सक्सेसफुल हुआ. लाइक हिज प्रेडेसेसर ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. और उसको आर्ट और लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. ठीक है, तो ये हो गई बात फिरोज शाह की. अब आएंगे हम लोग महमूद गवन के बारे में पढ़ेंगे. तो महमूद गवन वॉज बॉर्न इन ईरान. महमूद गवन का जन्म कहाँ हुआ? ईरान में हुआ. ही केम टू इंडिया एंड सेटल डाउन इन द डेकन रीजन. ऑब्वियसली डेकन रीजन में क्या था? बहमानी किंगडम था. एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ही मैनेज द स्टेट अफेयर्स फॉर 18 ईयर्स. ठीक है, चीफ मिनिस्टर वो स्टेट का था और उसने स्टेट अफेयर्स को मैनेज किया 18 साल तक. ही डिफीटेड उड़ीसा एंड विजयनगर रूलर्स एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज अप टू उड़ीसा एंड गोवा. ठीक है, बहमानी किंगडम का उसने बाउंड्रीज कहाँ तक एक्सटेंड किया? उड़ीसा और गोवा तक. Annexation of Goa was a remarkable achievement as it was an important port. ठीक है, गोवा पे भी आपको पता है कि बहुत सारा ट्रेड होता है वहाँ से, तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था इसका. महमूद गवन got the powers of the nobles and brought many reforms in administration. He also reformed the revenue system and promoted agriculture. उसने खेती को बढ़ावा दिया. Through his efficient and effective policies, he brought peace and prosperity to the kingdom. वो kingdom में क्या लाया? Peace and prosperity. There was all-round progress in the kingdom. Okay. महमूद गवन was a pious man. He patronized art and education. ठीक है, वो भी patronize करता था, पूजा करता था आर्ट और एजुकेशन की. He himself was a scholar of mathematics, medicine and literature. He promoted the growth of the Urdu language and invited many learned and scholarly people from countries like Iran and Iraq. ठीक है. He built a large madrasa or college at Bidar in 1472. The madrasa became famous as Mahmud Gavan's madrasa. This helped Bidar to emerge as a great center for learning. So ठीक है, उसने बहुत सारे मदरसा बनाए जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग थे. Students from various parts of India and abroad came to study there. Okay, he donated 3,000 books on various subjects to the madrasa. Some of the nobles of the Bahmani kingdoms were jealous of Mahmud Gavan's popularity. कुछ लोग जो थे बहमानी किंगडम के, क्योंकि महमूद गवन क्या हो रहा था, बहुत पॉपुलर हो रहा था, इसलिए उनको जेलस फील हुआ. Hence they conspired against him. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ में रणनीति रची. They got his steel stamp on a bank paper and wrote on it behalf of Mahmud Gavan asking the ruler of Odisha to invade the Bahmani kingdom. उन्होंने क्या किया, झूठे ही क्या किया, उन्होंने सील स्टैंप लगाया एक ब्लैंक पेपर पे और उस पर क्या लिख दिया कि महमूद गवन ऐसा लिख रहे हैं. उन्होंने ये लिख दिया और दे आस्क्ड द रूलर ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के रूलर से उसमें क्या पूछा गया था कि टू इन्वेड द बहमानी किंगडम, क्या बहमानी किंगडम को इन्वेड करो. They then charged him with treason after showing the paper to King Mahmud Shah III. Consequently, the king ordered the execution of Gavan. ठीक है, फिर क्या हुआ, जो उड़ीसा के किंग थे उन्होंने execution of Gavan को ऑर्डर किया. The man who had sincerely worked to restore the glory of the kingdom. It is said that before his execution in 1481, Gavan had prophesied that his death would prove to be a ruin of the Bahmani kingdom. Muhammad Shah III died the following year 1482 and was succeeded by weak rulers. As a result, the governors of the distant regions declared their independence and the Bahmani kingdom broke into 5 small kingdoms. ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाता है, bahmani kingdom 5 स्मॉल रीजन्स में ब्रेक हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. और वो क्या हुआ, पहला अहमदनगर रूलर बाय निज़ाम सहीज, बीजापुर रूल्ड बाय दी अदल सहीज, Golconda ruled by the Qutub Sahiz, Berar ruled by the Imad Sahiz and Bidar ruled by the
ब्रिद सरहीज। ठीक है, अब पब्लिक वर्क्स देखेंगे। दो द बहमानी किंग्स वर यूजुअली एंगेज्ड इन वॉर्स विद देयर नेबरिंग किंगडम्स दैट डिड नॉट डेटर देम फॉर कैरिंग ऑन वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। चूंकि बहमानी किंगडम के लोग क्या करते थे, वॉर करते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पब्लिक के इस्तेमाल, वेलफेयर फॉर पीपल था, वो करना नहीं भूलते थे। उन्होंने क्या क्या बनवाया, डैम्स, कैनाल्स बनवाया। किस चीज़ के लिए, टू प्रमोट एग्रीकल्चर। उन्होंने एजुकेशन को भी प्रमोट किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बनवाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, वजीर और द चीफ मिनिस्टर वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सम ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स इंक्लूडेड अमीर जुमला जो कि फाइनेंशियल अफेयर्स को रेगुलेट करते थे, सादारी जहान जो कि रिलीजियस और जुडिशियल डिपार्टमेंट को हेड करते थे, और वजीर अशरफ जो कि फॉरेन अफेयर्स को डील करते थे, रेगुलेट करते थे। बहमानी किंगडम जब छोटे छोटे डिवाइड हो गए, जब वो सेवरल प्रोविंसेस में, जिनको हम लोग तरफ्स के नाम से जानते हैं, जो तरफ का हर एक तरफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक गवर्नर के द्वारा रूल होता था, जिसका नाम था अमीर। ईच तरफदार, और जिसको हम लोग अमीर को तरफदार के नाम से भी जानते हैं। हर एक तरफदार क्या करता था, वॉज ग्रांटेड अ जागीर एज ए सैलरी, उसको सैलरी मिलता था जिसका नाम था जागीर। तरफदार्स और गवर्नर्स केप्ट देयर ओन आर्मीज। अब आर्किटेक्ट क्या क्या बना उस दौरान, बिल्ड अ नंबर ऑफ मदरसाज, सबसे ज़्यादा तो मदरसाज बनवाया, मॉस्क्यूज बनवाया, लाइब्रेरीज बनवाया। जामा मस्जिद जो कि गुलबर्ग में है, मदरसा महमूद गवन का, ये सब क्या है, फेमस आर्किटेक्चर है। ठीक है, बिदार और सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय द बहमानीज। गोल गुम्बज जो कि आदिल शाही ने बनवाया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बहमानी रूलर्स के आर्किटेक्चर के। सम अदर एग्जाम्पल्स आर टोम्ब ऑफ आदिल शाह एट बिहार, बिदार एंड फोर्ट्स ऑफ दौलताबाद एंड गोलकोंडा। तो यहाँ से बेटा आपका क्या हुआ, बहमानी किंगडम का, दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ तक बहमानी किंगडम पढ़ लिया। अब हम लोग विजयनगर किंगडम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बहमानी किंगडम को पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर आपका रीडिंग के ऑन रीडिंग बेसिस खत्म हो जाएगा। देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स इन PDF फॉर्मेट। ओके, till then read all that, and if you have any problem ask me in the homework section. Okay class, thank you.